أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ اسد اللہ جہاں پہ آپ موجود ہیں اسد اللہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام کے موضوع پہ ہمارا یہ اشرہ چل رہا ہے اور مشہد مقدس امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ہے مشہد مقدس میں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی آپ سب جہاں پہ موجود ہیں تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقفے کے میں آپ کے سامنے عین مقصد کی طرف آ رہا ہوں. اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم، اور رب العزت نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے ادعونی، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو عنقریب ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ دعا میں تکبر کے کیا معنی ہے؟ مولا دعا میں تکبر کرنا یعنی کیا؟ مولا دعا میں تکبر کرتا ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ مولا دعا میں متکبر ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے. دعا، نماز پڑھی لیکن دعا کو بھول گئے، عبادت کی لیکن دعا کو بھول گئے، حج بجا لائے لیکن دعا کو بجا نہیں لائے، روزہ رکھا لیکن دعا کرنا بھول گئے، نمازیں پڑھی لیکن دعا کرنا بھول گئے. تو مولا فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں، ان کو متکبر کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا پسند نہیں کرتے. تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہ کرے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. ان الذین ادعونی، مجھے پکارو. اور قرآن میں فاستجبنا حضرت زکریا کے لیے ارشاد ہوا، حضرت یونس کے لیے ارشاد ہوا ونجیناہم من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایسے ہی مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کلام مقدس میں انسان کو دعا بتا رہا ہے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ
دعا فقط مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دعا معرفت کا ذریعہ بھی ہے. دعا صرف مانگنی نہیں ہے آپ نے کہ اولاد مانگی یہی دعا ہے, رزق مانگا یہی دعا ہے, صحت مانگی یہی دعا ہے, علم مانگا یہی دعا ہے, تقوی مانگا یہی دعا ہے. دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے, دعا معرفت کا ذریعہ بھی ہے. دعا ہمیں بتاتی ہے کہ دعا بتانے والا کون ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے کہ معصوم کون ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے اللہ کے علم کا مظہر کون ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے اللہ کی اسماء کا مظہر کون ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے اللہ کی معرفت کا مظہر کون ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے کہ علم کیا ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے تقوی کیا ہے, دعا ہمیں بتاتی ہے صحت کس کو کہتے ہیں, دعا ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نام کتنے ہیں, دعا ہمیں بتاتی ہے شب قدر میں کیسے مانگو, دعا ہمیں بتاتی ہے ماہ رمضان کی راتوں میں کیسے مانگو, دعا ہمیں بتاتی ہے شوائے ماہ شعبان میں کیسے مانگو, دعا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی. ہماری نظر میں دعا کیا ہے؟ اولاد کا مانگ لینا دعا ہے, اولاد کی ترقی دعا ہے, اولاد کی صحت دعا ہے, اولاد کا رزق ملنا دعا ہے, اولاد کی آگے شادیاں ہو جانا دعا ہے. ہم نے گھر مانگا ہمارے لیے دعا, ہم نے علم مانگا یہ ہمارے لیے دعا. لیکن آیت پڑھ کر عزیزان محترم کمال یہ ہے کہ آیت کے ذریعے اللہ نے دو چیزیں انسان کے سامنے رکھی, ایک ذکر کو رکھا, ایک فکر کو رکھا. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کا پڑھنا ذکر ہے, فکر کرنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سوچو بنانے والا کون ہے, کہ وہ اللہ کہ جس نے ایسے کو بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کی شکل میں آیا, کہ جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں. فکر کرو کہ جس کا بھیجنے والا, جس کا آنے والا, جس کو بھیجا ہے, جب وہ اتنا عظیم ہے تو خالق اکبر کتنا عظیم ہوگا, خالق اکبر کتنا عظیم ہوگا. جس کو بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے تو جو مرکز رحمت ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. جس کو بھیجا ہے اس کو دشمن جو ہے اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں تو جو اصل مرکز ہے, جو بھیجنے والا ہے, وہ کتنا عظیم ہوگا. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو, اپنے غور و پیدا کرو, فکر پیدا کرو. اپنے اندر انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کی منازل کو طے کرے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس منزل پہ اور کس مقام پہ موجود ہے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. دعاؤں کے لیے بھی فکر کا ہونا ضروری ہے اور ذکر کا ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا کہ دعا جو ہے انسان کو آل محمد کے قریب لے کے آتی ہے. دعا انسان کو آل محمد کی قربت کا سبب عطا کرتی ہے. دعا سے پہلے بھی صلوات ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ چاہتے ہیں, روایات میں ملتا ہے, خود اس موضوع پہ ایک میرا بلکہ ایک نہیں 3-4 اشرے ہیں لیکن میں مختصراً جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں سے پہلے حکم ہے صلوات پڑھو, دعاؤں کے بعد حکم ہے صلوات پڑھو. روایت میں ملتا ہے اس لیے کہ اللہ ہر عبادت کو رد کر سکتا ہے انسان کی وجہ سے یا کوئی گناہ کی وجہ سے, لیکن اللہ کبھی صلوات کو رد نہیں کرتا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات کو دعا سے پہلے پڑھا کرو, صلوات کو دعا کے بعد پڑھا کرو, اس لیے کہ اللہ نہ پہلے صلوات کو رد کرے گا نہ بعد صلوات کو رد کرے گا. تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ پہلے والے کو قبول کر لے اور آخر والے کو قبول کر لے اور درمیان والے کو رد کر دے. اللہ کبھی درمیان والے کو پھر رد نہیں کرتا جب پہلے اور آخر والے کو اللہ قبول کر لے. اور یاد رکھیے گا دعا سے پہلے صلوات, فکر اور ذکر قرآن کے ساتھ صلوات, قرآن تدبر اور غور و فکر کے ساتھ صلوات. قرآن نام ہے غور کا بھی, تدبر کا بھی, فکر کا بھی اور ذکر کا بھی. اسی طرح سے ناطق کا نام صلوات ہے. ہم نے ذکر کیا, ہم نے دعا پڑھی اور ساتھ ذکر کیا. اللہ نے صلوات کی آیت کا حکم دیا یہ ذکر کے ساتھ, اور پھر صلوات پڑھی, یہ بتایا کہ دیکھو کہ جن کے لیے میں صلوات بھیج رہا ہوں. اور صلوات کیا ہے کہ آپ سورہ الحمد ٹھیک ہو نماز ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی, یہ سب جانتے ہیں. اگر صلوات نہ پڑھی جائے, قرات ٹھیک ہو صلوات نہ پڑھی جائے نماز باطل ہے. سورہ قل هو اللہ پڑھی ہو, ٹھیک پڑھی ہو, لیکن صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہے. اب آگے بڑھتے چلے جائیں, تشہد پڑھا, قیام کیا, رکوع کیا, سجدے کیے, سب کچھ کیا, قرات ٹھیک, مکان غصبی نہیں ہے, مصلی غصبی نہیں ہے, عبادت صحیح و سالم ہے, لیکن اس کے بعد اگر صلوات نہیں پڑھی تو سب نے لکھا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم
बिलक़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि जिसने आप पे सलवात ना भेजी अल्लाह उसकी इबादत को कबूल ही नहीं करता। याद रखें, सलवात ना पढ़ी जाए तो नमाज होती है लेकिन नहीं होती, सलवात ना पढ़ी जाए रुकू होता है लेकिन नहीं होता, सलवात ना पढ़ी जाए सजदा होता है लेकिन नहीं होता, सलवात ना पढ़ी जाए कयाम होता है लेकिन अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। यानी उस नमाज को नमाज कहा ही नहीं जा सकता कि जिसमें सलवात ना पढ़ी जाए। 73 फिरके मुत्तफिक हैं कि नमाज में सलवात का पढ़ना जरूरी है, तो सलवात पढ़ी जाती है। सलवात ना पढ़ी जाए तो इबादत बातिल होती है। तवज्जो फरमाइएगा, सलवात ना पढ़ी जाए तो नमाज बातिल होती है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जिन पे सलवात पढ़े बगैर अल्लाह नमाज को नमाज नहीं कहता और किसी गैर का नाम आ जाए तो भी इबादत बातिल हो जाती है। आले मोहम्मद पे सलवात निकाल दे तो नमाज नहीं, किसी दूसरे का नाम शामिल करे तो नमाज नहीं। तो जिनके नाम के बगैर, जिन पे सलवात के बगैर सलात मुकम्मल नहीं होती, तो आज शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि उनको रजी अल्लाह कहा जाए। रजी अल्लाह वो होता है कि जिनका तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अलैहिस्सलाम वो है कि जिन पे सलवात ना पढ़ी जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। सलवात हुक्म है पढ़ने का, तवज्जो फरमाइएगा, जहां यहां पे मौजूद है। सलवात, दुआ से पहले भी हमने औलाद मांगी, दुआ, हमने रिस्क मांगा, दुआ, हमने सेहत मांगी, दुआ, हमने इल्म मांगा, दुआ, हमने तकवा मांगा, दुआ, घर की दुआ, ये भी दुआ, इल्म की दुआ, ये भी दुआ, हमने मुकदमे से बरी होने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ये भी दुआ, जिसको रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। हमने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से दुआ की। दुआ मांगना, दुआ दर हकीकत सवाल का नाम है, बाप से मांगना सवाल है, लेकिन जब ये हाथ अल्लाह की बारगाह में उठते हैं तो अब ये सवाल दुआ की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि इंसान दुआ कर रहा है कि अल्लाह तेरी बारगाह में हम दुआ गो हैं। तो तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह की बारगाह में जब हमने सवाल किया तो यह है दुआ, हमने सवाल किया, यह है दुआ। अहले बैत की मवद्दत, ये भी दुआ। तवज्जो फरमाइएगा, हमने मवद्दत मांग, अल्लाह ने मवद्दत मांग कर, बल्कि बदल के ये जुमला कह दूं, नबी ने मवद्दत मांग कर सवाल किया उम्मत से, हमने सलवात भेजकर जवाब दिया मवद्दत का। तो फरमाइएगा, नबी ने कहा कुल्लास, अल्लाह ने कहा कि ये कह दीजिए, कुल्लास अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे हबीब आप कह दीजिए मैं कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी ने अजर रिसालत मांगा, अल्लाह के हुक्म से मांगा, अपनी मर्जी से नहीं मांगा। अब तवज्जो फरमाइएगा, वो नबी कि जिसके लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो नबी दे दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरा हबीब अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता, वही बोलता है जो वही होती है। और नबी जो दे दे वो ले लो, जिससे मना करे वो रुक जाओ। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये कंकरियां आपने नहीं मारी जबकि आपने मारी, ये कंकरियां अल्लाह ने मारी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह जिसके एक एक अमल को अपना अमल बता रहा है, इसका चलना अल्लाह बता रहा है कि अपना ना समझना, इसका बोलना मा ज़ागल बसर व मा तगा, इसकी आंखें धोखा नहीं खाती, जो देखता है मेरी मर्जी से देखता है, जो बोलता है मेरी मर्जी से बोलता है। तवज्जो फरमाइएगा, नबी ने कहा जन्नत है, हमने कहा सल्लमना, बिल्कुल है। जन्नत को देखा नहीं, जन्नत के औसाफ सुने। नबी ने कहा हूरें मिलेगी, देखा नहीं किसी हूर को लेकिन मान लिया। नबी ने कहा गिलमान मिलेंगे, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा पुले सिरात है, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा वहां पे दूध की नहरें बहेंगी, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा 1.25 लाख नबी आए, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा पुले सिरात जो है वो आग से ज्यादा गर्म है, तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा इस तरह का अजाब हो नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा जहन्नम की ये सिफात है, देखा नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा कि ये अल्लाह ऐसा है, नहीं देखा लेकिन मान लिया। नबी ने कहा कि वो अल्लाह ऐसा है कि जिसके मुतालिक आपने इरशाद फरमाया कि वो ना फिक्र में आता है, ना इंसान की सोच में आता है, ना इंसान के तसव्वुर में आता है, ना इंसान कभी उसको इहाता कर सकता है, ना सोचा ना समझा, मान लिया। नबी ने कह दिया, सादिक ने कहा, अमीन ने कहा, रहमतुल लिल आलमीन
ने कहा तमाम, बल्कि यूं जुमला कह दूं, काबे में आने वाले ने जिसको अपना मौला बताया, काबे में आने वाले ने कहा कि ये मेरा मौला है। अब अजीब जुमला आपके सामने देना चाहता हूं आप सबकी तवज्जोहात के लिए कि जो जो नबी ने कहा मानते चले गए। ऐसे मकानात होंगे जन्नत में, मान लिया, किसी ने मकान देखा नहीं, वो याकूत का घर देखा नहीं, हीरे की कोठियां देखी नहीं, मोती के कसर देखे नहीं, इंसान ने कुछ देखा नहीं, सोने और चांदी के बने हुए इंसान ने तमाम चीजें, तख्त वगैरह ताज देखे नहीं, लेकिन मान लिया। किसने कहा? सादिक ने कहा, अमीन ने कहा। तो सादिक और अमीन के कहने पे इंसान ने सब मान लिया। तो जो फरमाइएगा, सादिक और अमीन के कहने पे इंसान ने सब मान लिया, सवाल नहीं किया क्यों, कब और कैसे। जब सादिक ने कह दिया है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। तो सब चीजें, सब गैबी चीजें, भाई मुनकर नकीर कब्र में आएंगे, मान लिया, देखा नहीं, कब्र में सवाल होगा, मान लिया, फिशारे कब्र होगा, देखा नहीं लेकिन मान लिया, यह सब कुछ होगा, मान लिया, कब्र में सांप आएंगे, मान लिया, बिच्छू आएंगे, मान लिया, कब्र में अजाब होगा, मान लिया। कमाल की बात है, कब्र में अजाब होने को तो मान लेते हैं, और अगर कभी कूफे के मिंबर से या बाजार में या कूफे के बाजार में अगर कोई शख्सियत ये कहती हुई नजर आए, या हारे हमदान मैं यमुत यरनी मिन मुमिनिन और मुनाफिकिन को बोला, ऐ हारे से हमदानी, जो मरता है वो अली को देखता है, चाहे मशरिक में मरे, चाहे मगरिब में मरे, चाहे शिमाल में मरे, चाहे जुनूब में मरे, वो अली को देखे बगैर मर नहीं सकता। मैं कहूंगा, या अली, आप मोमिन को तो दिखाते हैं अपना जलवा, ये मुनाफिक को क्यों दिखाते हैं? मोमिन और मुनाफिक दोनों देखेंगे, मौला मोमिन को तो अपना जलवा दिखाते हैं, मुनाफिक को क्यों दिखाते हैं? तो मौला की आवाज है, यही बताने के लिए, यही दिखाने के लिए तो जलवा दिखाता हूं कि जिस अली को मान के तू मजलिस से उठ के चला जाता था, जिस अली के फजाइल सुन के, अल्लाह अकबर, अली के जिक्र को मानने से बगैर तू मजलिस से चला जाता था, जिस अली के जिक्र को सुन के तेरी हालत गैर हो जाती थी, जिस अली का जिक्र सुन के तेरे चेहरे पे वट पड़ने शुरू हो जाते थे, जिस अली के जिक्र को सुन के तेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ना शुरू हो जाती थी, 12 बज जाते थे तेरे चेहरे पे, जिस अली के फजाइल सुन के तेरा चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता था। देख, आज वही अली तेरे सामने बैठा है, तख्त लगा हुआ है, ताज के साथ, इज्जत के साथ, कि तेरी कब्र में अली मौजूद है। हिम्मत है तो भाग के दिखा, हिम्मत है तो जाके दिखा, हिम्मत है तो जरा उठ के दिखा। तवज्जो फरमाइएगा। तो वहां पे ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ बोल सकता है। मजबूरी क्या है? सिर्फ अली को देख सकता है। ये मोमिन की शान है कि कब्र में अली को देख के भी इबादत करेगा, और ये मुनाफिक का मकाम है कि कब्र में अली को देख के मर के फिर मर जाएगा। और यही जुमला है, मैंने यहां पे एक जुमला कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। यहां पे शेख सादी फरमाते हैं, ऐ के गुफ्ती मैं यमुत यरनी फिदा बे कलाम दिल जूयत, काश हर रोज 1000 बार मुर्दमी ता दीदमी रूयत। ऐ वो जात जिसका ये फरमाना है कि जो मरता है वो अली को देखता है, काश मुझे हर रोज 1000 मर्तबा मौत आए ताकि 1000 मर्तबा अली के चेहरे की जियारत कर सकूं, ताकि हर रोज 1000 मर्तबा अली के चेहरे की जियारत कर सकूं। जब से सुना है कब्र में आते हैं मुर्तजा, मैंने कभी दुआ ही न की फिर हयात की। तो जो है ना भाइयों, यहां भी दुआ है। और आ जाए उस्ताद सिब्ते जाफर शहीद का वो शेर है, उसले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूं अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह सलवात के बगैर दुआ कबूल नहीं करता। सलवात खुद दुआ है, लेकिन हमने, नबी ने मवद्दत मांगी, अजर रिसालत मांगा, ये नबी का सवाल, और हमने सलवात भेजी, ये हमारा जवाब। जब हमने नबी के सवाल का जवाब दिया तो अब अल्लाह जो है वो हमारे सवाल का भी जवाब देता है। अल्लाह ये कहता, तुमने मेरे नबी के सवाल का जवाब दिया, आओ अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बताओ क्या चाहिए? औलाद चाहिए, ये लो। इल्म चाहिए, ये लो। तकवा चाहिए, ये लो। सेहत चाहिए, ये लो। जो चाहिए। अब अजीजान मोहतरम, हम दुआ, सलवात हमने पढ़ी, दुआ रहमत की तलब है, दुआ
तलब रहमत है। अल्लाह की बारगाह में रहमत के तलब को सलवात कहते हैं, और अल्लाह जो भेजता है वो नुज़ूल रहमत है। अल्लाह कहता है मैं उसके मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह नुज़ूल रहमत करता है। हमारा इस्तगफार करना और है, हमारा इस्तगफार तलब मगफिरत है। नबी का इस्तगफार पढ़ना तलब मगफिरत नहीं है, उम्मत को सिखाने का जरिया है कि ऐसे अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार किया करो, ऐसे अल्लाह की बारगाह में तलब मगफिरत किया करो। तो परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बेमोहताज जिंदगी अता फरमाए और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। भाइयों दोस्तों, सलवात अल्लाह से तलब किया गया और ये दुआ है, दुआ मांगी जाती है। कहते हैं अपनी इबादत को, और याद रखिएगा अल्लाह ने कलाम किया, दुआ हजरत मूसा के शजर की हैसियत रखती है। दुआ शजर मूसा की हैसियत रखती है। कैसे शजर मूसा की हैसियत रखती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया उस शजरे के जरिए जो कोहे तूर पे था, शजरे सीना के जरिए अल्लाह ने कलाम किया। उलमा ने लिखा है कि जिस जगह वो शजर था, तवज्जो फरमाइएगा, जिस जगह वो शजर था आज उस जगह कब्र हैदर करार है। नजफ अशरफ में यही वो मकाम है जहां पे इस टीले पे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर। तो ये वो मकाम है कि यहाँ पे दरख्त था जिसके जरिए अल्लाह ने हजरत मूसा से कलाम किया, और हजरत मूसा जब जाने लगे तो आवाज कुदरत आती है, फखलअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा जूतियां उतार के आना, ये वादी मुक़द्दस तुवा है। तूरे सीना पे हजरत मूसा के, तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मूसा को अल्लाह ने मेराज अता की, तो वहां पे पहुंचाया। तो ये दरख्त जो है अपनी वजह से मोहतरम नहीं हुआ। दरख्त जो है पत्तों की वजह से नहीं, शाखों की वजह से नहीं, जड़ की वजह से नहीं, मोहतरम नहीं हुआ। चूंकि यहां कब्र अली बननी है इस वजह से मोहतरम है। तो अब मैं जुमला कहने का हक रखता हूं, जो अली दुनिया में आने से पहले कलाम इलाहिया का वसीला बन जाए, तवज्जो फरमाइएगा, जो अली दुनिया में आने से पहले कलामुल्लाह का वसीला बन जाए, और वो अली अगर दुनिया में आके लिसानुल्लाह होता नजर आए तो कैसी ताज्जुब की बात है। असहाबे कहफ, असहाबे कहफ, उनके कुत्ते का नाम कितमीर बताया गया है रिवायात में। कितमीर उनके कुत्ते का नाम है। नबी नहीं थे असहाबे कहफ, इमाम नहीं थे, मोमिन थे। कुत्ते के दिल में मोमिनों की मोहब्बत थी। तो तारीख में है कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, कुत्ते के दिल में मोमिन की मोहब्बत थी, असहाबे कहफ मोमिनीन की मोहब्बत थी। तो लिखा है ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। तो जिनके एक कुत्ते के दिल में मोमिनों की मोहब्बत आ जाए तो कुत्ते को जन्नती बना देती है, और अगर किसी मोमिन के दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत आ जाए तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे। शब 5 मुहर्रम है भाइयों, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। दिन गुजरते जा रहे हैं और करबला हमसे नजदीक होती जा रही है। आज मैंने चंद खुतूत का जिक्र करना है। खत की बड़ी अहमियत है भाइयों, समझ रहे हैं ना मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं आपको। इमाम हुसैन ने भी करबला में कुछ खत लिखे थे। खत की बहुत अहमियत है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, हजरत सुलेमान ने खत लिखा बिल्कीस को। क्या लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खत का आपने लिखा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी, और अल्लाह ने बिस्मिल्लाह को कुरान की आयत बना के भेजा ताकि कभी कोई ये एतराज ना करे कि बिस्मिल्लाह कुरान का जुज़ है या नहीं। उसके अलावा दीगर नबियों के अल्लाह ने खुतूत का जिक्र किया। पैगंबर अकरम ने कहां कहां हफ्शे खत लिखा, किस किस मकाम पे आपने खत लिखे। अमीरुल मोमिनीन के खुतूत नहजुल बलागा में एक हिस्सा है जो खुतूत अमीरुल मोमिनीन पे मौजूद है। आप आए, मेरे मौला ने जो मालिक अश्तर को खत लिखा था, मालिक अश्तर का खत तारीख उठा के देखें आप, यूनाइटेड नेशन में, साजमान मिलल में, अक़वाम मुत्तहदा में वो खत बाकायदा लगा हुआ है कि अगर हुकूमत करनी है तो इस खत के जरिए, ये जो हुकूमत करने का तरीका हैदर कर्रार ने जो बताया, दुनिया मानती है कि ये खत जो है इतना अहम था। और ये खत ले जाने के लिए हजरत मालिक अश्तर की शहादत हुई। खुतूत का सिलसिला
اور कैसर रूम की तरफ से खत, तो खत जो है उसके हवाले से मैं 2 जुमले आपके सामने बयान कर रहा हूं। अज़ान मोहतरम 25,000 खत मेरे मौला हुसैन को लिखे गए। जब मेरे मौला मक्के थे तादाद 25,000 तक पहुंच गई थी। और मेरे मौला ने पहला खत लिखा, सफीर इमाम हुसैन पहले कौन थे? हजरत कैस इब्न मुसहर सैदाविया सदी के जरिए पैगाम भेजा। अगला खत आपने लिखा हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के जरिए आपने खत लिखा। और उसके बाद करबला पहुंच के कुछ खत आए भी और कुछ खत गए भी। खत कौन सा आया? मदीने से एक बेटी का खत आया। और मौला ने कौन से खत लिखे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौला ने भी खत लिखे। तारीख में मिलता है मौला हुसैन ने 28 खत लिखे हैं करबला से, जिनमें से एक खत हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, आपको आबाद और शाद रखे। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा मेरे मौला हुसैन ने। और उसके बाद अतराफ करबला में खत लिखे, नासरिया के लिए खत लिखा। और कुछ खतूत मौला ने बसरे के लिए भेजे। वहां पे मुसैयब नाम के एक मौला के सहाबी आशिक जानिसार अहले बैत मौजूद थे। मौला ने जब वहां पे खत लिखा, उनके नाम जब खत पहुंचा है ना, तवज्जो फरमाइएगा, जब वो खत पहुंचा है मुसैयब के पास, चूंकि बसरा 500 किलोमीटर का फासला है और कूफा जो है वो तो 80 किलोमीटर का फासला है। तो जब आगे खत पहुंचते चले गए तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खत मुसैयब के नाम लिखा, तो मुसैयब ने कहा मैं अकेला कैसे जाऊं। उन्होंने बंदों को जमा किया, इसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, उसके दरवाजे पे, चलो मौला हुसैन अकेले हैं, करबला में बुला रहे, चलो करबला चलते, चलो करबला चलते। कुछ लोग तैयार हुए और कुछ ने अपनी मसलहतें बयान की। नतीजा क्या निकला? चंद दिन के इंतजार के बाद हजरत मुसैयब रवाना हुए करबला के लिए। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। मिलता है कि सफर करते करते आशूर का दिन आ गया और नजदीक जोहर देखा तो कोई आ रहा है। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा मैं करबला से आ रहा हूं। कहा करबला के क्या हालात हैं? कहा मैं उस वक्त करबला से निकला था जब हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा इमाम हुसैन उठा के ले आए थे। तो रोना शुरू कर दिया कि सहाबी हुसैन, इमाम के बचपन के साथी हबीब भी इस दुनिया से चले गए। बात आगे बढ़ती चली गई। एक और आता नजर आया। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा करबला से उस वक्त चला था जब हुसैन अली अकबर का लाशा लेके खैमे की तरफ आ रहे थे और इमाम हुसैन से चला नहीं जा रहा था। अगली मंजिल आई, एक और को आते देखा। पूछा आप कहां से आ रहे हैं? कहा मैं उस वक्त करबला से चला जब हुसैन करबला के मैदान में कुछ टुकड़े उठा के एक गठरी की शक्ल बना रहे थे। समझ गए होंगे ना, कासिम के लाशे को इकट्ठा कर रहे थे। आगे गए, एक और को देखा। कहा कि मैं उस वक्त करबला से चला था जब अब्बास के दोनों शाने कट गए थे। अज़ादारों, ये जुमला कहना था तो रोते हुए आवाज बुलंद हुई मुसैयब की, देखो अब तो वाकया खत्म हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मौला की शहादत हो गई। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। अज़ादारों, कुछ मंजिल और आगे बढ़ती है। मुसैयब आगे गए तो क्या देखा? कहा कि एक आ रहा है रोता हुआ। पूछा कहां से? कहा मैं उस वक्त करबला से, अल्लाह हफीज कहता हुआ। कहा मैं उस वक्त करबला से चला था जब हुसैन 6 महीने के अली असगर को उठा के लेके आ रहे थे। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, ये भी मंजर हो गया। अब मुसैयब ने कहा अब तो कोई बाकी नहीं बचा, चलो करबला चले, जल्दी करो। अज़ादारों, आगे पहुंचे। इधर मुसैयब का घोड़ा करबला में दाखिल हुआ, उधर करबला में जलजले आने शुरू हुए, सियाह आंधियां चलनी शुरू हुई, आसमान से खून बरसने लगा और एक आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। लोगों, हुसैन को शहीद कर दिया गया, हुसैन को ज़िबा कर दिया गया। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। इधर करबला के मैदान में ये आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला। रावी बयान करता है, मैंने देखा बीबियां खैमों से निकली, लाते मातिल वजूह नाशिरात शऊर, मुंह पे तमाचे मारती हुई। कोई बीबी कह रही है वाह मोहम्मदा, कोई कह रही है वाह अलिया, कोई कह रही है वाह हसना, कोई कह रही है वाह हुसैना, और एक बीबी की आवाज आ रही है वाह हिजाबा, वाह गुरबता।
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार हमारी इस इबादत को मंजूर और कबूल फरमा। जब तक जिंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जान निसारों में शामिल फरमा। परवरदिगार हमें उठते बैठते चलते फिरते ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करने की तौफीक अता फरमा। वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से इनके जिक्र को देखे उन आंखों को अंधा फरमा। हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद है उनको इमाम हुसैन का आज़ादार अता फरमा। जो बेघर है उनको इमाम हुसैन की मजलिस करने की जगह अता फरमा। जो बेरोजगार है उनको इमाम हुसैन की मजलिस का तबर्रुक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ ना देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा अगले साल से पहले हम सबको ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिसने मुझसे इल्तमा से दुआ के लिए का मशहद मुकद्दस में मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा उन सबकी दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा उस वक़्त तक हमें मौत न देना जब तक हमारे कानों में आवाज ना आ जाए, ऐ मरने वाले हुसैन की माँ सैयदा तुझसे राजी है। परवरदिगारा बीबी सैयदा को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। परवरदिगारा बीवी को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा। परवरदिगारा हम सबको उसवा हसन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा वो हाथ जो अज़ादारी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से इमाम हुसैन के जिक्र को देखे उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा हमारे वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफियत और रहमत करार दे। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, सालमियत की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा कोरोना की वबा का पूरी दुनिया से खात्मा फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा का सदका हमारे दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत है इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो ये वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हम सबको इबादत मुनाजात और दुआ करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें रोज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने की सआदत नसीब फरमा। हमें हदीस किस्सा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे बच्चों को दीन और दुनिया में कामयाब व कामरान फरमा। परवरदिगारा बच्चों को वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों हमारे इमाम बारगाहों दोनों को आबाद फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का परवरदिगारा बुजुर्गों को अपने बच्चों के साथ प्यार करने की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिनके घरों में नाखुशियां हैं, मियाँ बीवी के मसले हैं, दूसरे मसले हैं, तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, परवरदिगारा उन सब के घरों में खुशियां और खुर्रमियां वापस ले आ। परवरदिगारा आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद की बरकत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका जिसने मुझसे इल्तमा से दुआ के लिए कहा उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हमारे 3 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। एक कदम बे कदम करबला के वाक़यात के मुतल्लिक, बाद में पहले के वाक़यात से मुतल्लिक ये प्रोग्राम है कदम ब कदम करबला मेरे पेज से और पंचतन टीवी और करबला टीवी से बराह रात जो है एट टाइम नशर हो रहा है। उसके अलावा 11 बजे रात को ये मजलिस अज़ा है जो आप समात फरमा रहे हैं दुआ और हुक्म दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान पे। ये 11 बजे ठीक 4-5 मिनट आगे पीछे की आप मादरत खाई पहले से चाहता हूँ, मैं नेट की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। और 12:30 बजे तमाम मजालिस से आप फारिग हो जाएं और उसके बाद मासूम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से लाइव ज़ियारत भी होती है, मसाइब भी होते हैं ठीक 12:30 बजे इमाम रज़ा के हरम से, और ठीक 11 बजे जो है ये मजलिस अज़ा होती है लाइव जिसको आप समात फरमाते हैं। और रोज़ाना जो है वो दर्स जो है वो सलाम के मौजूद वालिद बुजुर्गार की तरफ से भी पेश होता है, वो भी आप देख सकते हैं। परवरदिगार आलम आप सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मशहद मुकद्दस में आप सबके लिए, आप सबकी परेशानियां दूर होने के लिए, सबकी मुश्किलात के हल के लिए और करबला की ज़ियारत के लिए दुआ गो हूं। आप सब मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीन वल मोमिनात बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन
خیر اعوانہ و انصارہ والمستشہدین بین یدہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا فی امان الکریم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔